सी साइड पे पानी का शोर, आजा मेरी बाहों में girl what you waiting for, तुझको मैं लेके चलूं फिर प्यारी सी यॉट पे, हो जाएंगे हम टल्ली नल्ली बुक के शॉट। आज तू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, आजा ओ the beach यार फोटो मेरी खींच, तेरी तू नहीं बात न माने। आज भी है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, आजा on the beach यारा फोटो मेरी खींच, तेरी किस्मत होगी तेरी तू नहीं है बात न माने। जोरदार तालियां इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। नहीं अधिमाई, दूसरों की सेवा के समान कोई भी धर्म नहीं, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई भी अधर्म नहीं। आज का मानव कितना संवेदनशील हो चुका है, संवेदनहीन हो चुका है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसी शायर ने इसी बात को एक खूबसूरत शब्द में कहा है, तारीख हजारों साल में बस इतनी सी बदली है, तारीख हजारों साल में बस इतनी सी बदली है, तब दौर पत्थर का था, आज इंसान पत्थर के हैं, आज इंसान पत्थर के हैं। एक ऑफिसर, एक डॉक्टर, एक मुस्लिम बाबा, एक हिंदू सन्यासी और एक ईसाई नन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए सड़क पर पड़े एक गरीब, निर्धन, दुखी व्यक्ति को उसी हाल में छोड़कर चले जाते हैं, और एक मध्यम वर्गीय परिवार से गरीब व्यक्ति जो कि मध्यम वर्गीय आम आदमी परिवार से रहता है, वो उस व्यक्ति को अस्पताल लेके जाता है और अपने ही पैसे से उनका इलाज करवाता है। तो प्रस्तुत है आपके सामने लघु नाटिका ट्रू लव इज सर्विस। सच्चा प्रेम मानव सेवा में ही निहित है। नाउ ओवर टू हैप्पी पटेल। अनुराग यादव एज ऑफिसर। Background there is the sound of traffic. A well-dressed officer enters the stage from the left side. Oh dear, these dirty people, good for nothing, have no other work but lie down here and there and make the city look so unclean and disorderly. It is because of these people that our country has such a bad name. Why can't our roads be like those in America and other first world countries, clean and green? What is the government doing? Well, if the government is not bothered, why should I? Anyway, it's time for me to go. Cool cab, cool cab. Runners pass by. They are on their way to the hospital. They are discussing something. Shanti, did you read that magazine I gave you? Yes, it speaks a lot about the Indian situation. Yes, sickness and disease is on the rise in our country and especially in our state. The poorer classes are the ones who are affected the most due to lack of the nourishment, cleanliness and medicines.
Can't we could do something? Yes. Hey, that man seemed to be in terrible pain. Oh, poor fellow. Shanti, isn't it time for our conference? Today, well-known the doctors from all over India are coming to speak on how we can help the poor people to fight disease. We must not be late. But Oh, come on. The municipality will take care of him. An invitation card of inter-religious meet. She looks at it and looks around. Jai Moti Nagar. Now where is it? I am on the right road. I hope somebody will help me. A sannyasi and a Muslim Baba are coming from the opposite direction. They are talking. The two have the same invitation card in their hands. Excuse me please, but I think I have lost my way. Do you know where is Jai Moti Nagar? Oh, we two are going there. Yes, for the interreligious meet. You can join us. Oh, so good. Help, somebody help. Oh, poor man. It looks like he has a terrible stomachache. We must do something for him. Let's take him to the government hospital. Just then a siren is heard. They all look at their watches. Oh, it is already time. We must rush. May God help you. We will pray for you. A man be a happy middle class family. Papa, will you buy once ice cream for me? Yes, my dear. Today Papa has got his bonus from the company. We will have a special lunch in a hotel and we will also have ice cream. Hooray! Manta, look at this man. He looks quite sick. He is having eye fever. Mama, who is this? My dear, he is a human being like you and me, that's all. And he needs our help. Let us take him nearby the hospital. Papa, ice cream. Afterwards, my dear. They help him up and take to the hospital. They made all the expenses at the hospital. Mama, abhi not going to the hotel. Abhi not going to have ice cream. Not today, dear. Then when, Mama? Next month, my dear. पूजा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उस बंदे का बनूंगा, मैं उस बंदे का बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा, खुदा के बंदों से प्यार होगा। अगली प्रस्तुति हमारी, क्षमा कीजिएगा और अभिनंदन करें।
ये लोक का परिचायक है और इस लोक नृत्य के जरिए हमें अपने मिट्टी की खुशबू का एहसास होगा। तो प्रस्तुत करते हैं लोक नृत्य जिया न लागे घरवा।
and the management feel honored to have you all here. Our esteemed chief guest, Sri Anup Sanda ji, the galaxy of intellectuals and respected parents, and my dear friends. Our next presentation in the line is a welcome song presented by the budding singers of our institute. नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे।
प्राचीन काल से ही यह देखा गया है कि समाज की दिशा और दशा बदलने में साहित्य और साहित्यकारों का एक अहम योगदान रहा है। इसीलिए तो शायद कहा गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो शुरू करवाते हैं मुकुंद माधव विद्यालय के प्रतिष्ठित कवियों से। इसके लिए मैं श्रीमान रजनीश साहू को मंच पर निमंत्रित करना चाहूंगा। रजनीश प्लीज। से जीवन देती है माँ, ईश्वर का वरदान है माँ, माँ माँ माँ। तो आइए सुनते हैं माँ की ममता से भरा हुआ एक प्यारा सा गीत। रूह के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमको और बिलख जाती है माँ। इन्हीं उद्गारों के साथ मैं आवाज देता हूँ अपना पाल जी को, वो आए और अपनी कविता से लोगों को मंत्रमुग्ध करें। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। पाई पाई मम्मी लेती नहीं दवाई मम्मी, जोड़े पाई पाई मम्मी, दुखते पर्वत रहाई मम्मी, हारी नहीं लड़ाई मम्मी। इस दुनिया में सब मैले हैं, इस दुनिया में सब मैले हैं, किस दुनिया से आई मम्मी। दुनिया के सब रिश्ते ठंडे, गर्मा गर्म रजाई मम्मी। जब भी कोई रिश्ता उजड़े करती है तुरपाई मम्मी। बाबूजी तनख्वाह लाए बस, लेकिन बरकत लाई मम्मी। बाबूजी थे सख्त मगर माखन और मलाई मम्मी। बाबूजी के पांव दबाकर सब तीरथ हो आई मम्मी। नाम सभी है गुड़ से मीठा, माजी मैया माई मम्मी। सभी साड़ियाँ छींच गई थी, सभी साड़ियाँ छींच गई थी, मगर नहीं कह पाई मम्मी। मम्मी से थोड़ी थोड़ी सबने रोज चुराई मम्मी। घर में चूल्हे मत बांटो रे, देती रही दुहाई मम्मी। बाबूजी बीमार पड़े जब साल साल मुरझाई मम्मी। रोती है लेकिन छुप छुप कर बड़े सब्र की जाई मम्मी। लड़ते लड़ते सहते सहते रह गई एक तिहाई मम्मी। बेटी की ससुराल रहे खुश, सब जेवर दे आई मम्मी। मम्मी से घर घर लगता है, बेटे की कुर्सी ऊंची पर उसकी ऊंचाई मम्मी। दर्द बड़ा हो या छोटा, दर्द बड़ा हो या छोटा, याद हमेशा आई मम्मी। घर के सगुन सभी मम्मी से हैं कि सहनाई मम्मी। सभी पराए हो जाते हैं, सभी पराए हो जाते हैं, होती नहीं पराई मम्मी, होती नहीं पराई मम्मी। है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। देशभक्ति के भाव से भरे हुए, देश प्रेम का अलग जलाने, मातृभूमि पर शीश नवाने अपनी कविता रूपी पुष्पांजलि अर्पित करने आ रहे हैं श्रीमान अजीत वर्मा जी। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। उर्दे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा, उर्दे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा। रिया सैयद के हाथों ये अपना सिया होगा, रिया सैयद के हाथों ये अपना सिया होगा। ये आए दिन की चेर अच्छी नहीं खंजरे का दिल, ये आए दिन की चेर अच्छी नहीं खंजरे का दिल। बता कब फैसला तेरे हमारे दरमियाँ होगा, बता कब फैसला तेरे हमारे दरमियाँ होगा। वतन की बात देख के कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे। जब अपनी जमी होगी, जब अपना आसमां होगा, जब अपनी जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी
निशा होगा, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। उनसे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा, उनसे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा। धन्यवाद। क्या कहिए मौसम खुशगवार है, क्या कहिए ये फिजा ये बहार है, क्या कहिए ऐसे आलम में क्या मुनासिब है आपसे बार बार क्या कहिए। जी हाँ, आपसे बार बार कहने के लिए ये कुछ अनमोल मोतियों को लड़ियों में पिरो कर लाए हैं श्रीमान विपिन पाल जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। छूने वाला हाथ काट के रख देंगे, माँ तेरा आंचल छूने वाला हाथ काट के रख देंगे। निकल पड़े हैं रण में तेरे दूध की कीमत देने वाले। लहू रगों में उबल रहा है, लहू रगों में उबल रहा है। आज काम ये आएगा जहाँ गिरेगी एक बूंद एक किला वहाँ बन जाएगा। मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। दिल फिदा करते हैं, दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं। जो भी कुछ पास है माँ की नजर करते हैं। रवाना वीरान देखिए, रवाना वीरान देखिए कहाँ घर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, खुश रहो अहले वतन। हम तो सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं। धन्यवाद। गीत गजल का माहौल हो, प्यार की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ सूना सा लगता है। इसी अधूरेपन को भरने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे देश के सबसे बड़े कवि श्रीमान निखिल यादव जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तो मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तो मुझसे दूर कैसे है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक ऐसा शौक की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक ऐसा शौक की पावन सी कहानी है। कभी कभी रात दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है, कभी कभी रात दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आँखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आँखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार के मोती है, इसको खो नहीं सकता। ये आंसू प्यार के मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर तुमने जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। धन्यवाद। Does it make carefree? Dancing to the rhythm of music brings us joy and makes us carefree. So, to move your feet, we present our next program, which is a dance on song Jalwa Jalwa. बादल बादल थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा।
फिदा जानिसा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है मेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे आगे तेरा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा मैं हूँ फौजी तू मन मौजी मैं हूँ फौजी तू मन मौजी खूब मिले दीवाने दो जी खूब मिले दीवाने इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल के अंदर इश्क का जज्बा क्या जलवा क्या भरता दिलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा गुलशन गुलशन सहरा सहरा दिल महल सायल सायल मस्ती 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 दुल्हन बादल चलवा चलवा आँख में काजल क्या कहना फूल संखड़ा चलवा चलवा चांद का टुकड़ा क्या कहना चेहरा किताबी क्या कहना होठ गुलाबी क्या कहना चांद शराबी क्या कहना हाथ नवाबी क्या कहना कोई फरिश्ता या बंदा सब चीज़ बात तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा जलवा तेरा जलवा जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए।
बच्चों में स्फूर्ति का संचालन कर सकते हैं। कि आज के इस वार्षिकोत्सव समारोह की गरिमा को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में माननीय विधायक श्री अनूप संडा जी मौजूद हैं। विधायक जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सब यह भी जानते हैं कि मुख्य अतिथि के व्यक्तित्व व कृतित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालने की परंपरा रही है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय के प्रबंधक श्री ओम प्रकाश वर्मा जी को आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपने श्रीमुख से इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई श्री अनूप संडा जी, आदरणीय अभिभावकगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें व समस्त युवा वर्ग पर मैं थोड़ा जोर देना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उसको जमाना चलता है जिसको जवानी चलती है, उसको जमाना चलता है जिसको जवानी चलती है। ये जवान अगर ठान लें कि हमें कोई काम करना है तो निश्चित ही वह कार्य असंभव नहीं होगा। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि जी का इस विद्यालय प्रांगण में स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। अत्यंत व्यस्तता के बावजूद आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो अवसर निकाला, उसके लिए हम ही नहीं समस्त विद्यालय परिवार आपका आभारी है। विद्यालय का जो भी प्रचार प्रसार व विकास हुआ है, उसमें विधायक जी का महती सहयोग रहा है। आपके द्वारा प्रदत्त राशि से एक कक्ष निर्मित किया जा चुका है, जिसके लिए समस्त विद्यालय परिवार आपका ऋणी है। पर पढ़कर लाभान्वित हो रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और वो भी कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों की तरह जब कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। और इसमें निश्चित ही विधायक जी का, जो हमारे बड़े भाई हमारे सहपाठी रहे हैं, महती सहयोग रहा है। विद्यालय परिवार श्रीमान जी से भविष्य में भी ऐसे ही सहयोग की कामना करता है, जिसमें ग्रामीण अंचल के बच्चे भी बेहतर तालीम प्राप्त कर राष्ट्र हित व समाज हित। थोड़ा सा विधायक जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मैं 2-4 शब्द बोलने की अनुमति चाहता हूँ। मित्रों, हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में एक दीदावर पैदा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सुल्तानपुर में समाजवादी आंदोलन के सेना नायक बाबू त्रिभुवननाथ संडा के घर 5 पुत्रियों के बाद तकरीबन आज से 47 वर्ष पूर्व आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक अनूप संडा जी का जन्म हुआ। लालन पालन और परिवेश राजनीतिक होने से युवा अवस्था से ही आदरणीय संडा जी ने सामाजिक गतिविधियों में प्रमुखता से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। महज 16 या 17 वर्ष की उम्र में ही आपने 1984 में, जिस समय एक प्रधानमंत्री के गार्डों द्वारा ही उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी, उस पर पूरे देश के साथ ही नगर सुल्तानपुर में भी भारी अराजकता फैली। भाई अनूप संडा ने इसके ढांचे के मसले पर नफरत के माहौल में नुक्कड़ नाटक जनता पागल हो गई के जरिए लोगों को अपनी
अमन पसंदी का एहसास दिलाया। जीवन में गरीबों की जान बचाने के लिए अपने शरीर का 41 बार रक्तदान करने वाले माननीय विधायक अनूप संडा ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए संपूर्ण समाज में शांत, सद्भाव, कर्मयोग संदेश वाले श्रीमद् भागवत गीता वितरण सहित अपने क्षेत्र के दर्जनों ग्रामों में पयामे इंसानियत सम्मेलन आयोजित किए। का भगीरथ प्रयास किया। पहली बार 11 मई 2007 को सुल्तानपुर सदर व 2012 में सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र से दोबारा प्रदेश के सर्वोच्च विधायी सदन विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय विधायक अनूप संडा इस बार विधानसभा उत्तर प्रदेश के ट्राक्टोरियल बोर्ड के अधिष्ठाता भी हैं। अपने जीवन में धैर्य के धनी विधायक अनूप संडा ने डॉक्टर अनूप संडा ने हमेशा डॉक्टर लोहिया के सपनों के समाज के अंतिम आदमी को केंद्र में रखकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। मशहूर शायर कैफी आजमी के लफ्ज़ में हम ये तो नहीं कहते कि हमें जमी को गुलजार कर दी है, हम ये तो नहीं कहते कि हमने जमी को गुलजार कर दी है, पर दुनिया में हम आए तो दिलों की कुछ खार तो जरूर कम कर दी है, दुनिया के दिलों में कुछ खार तो जरूर कम कर दी है। एक पंक्ति भाई साहब के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इतना बढ़िया लेखक नहीं हूँ, लेकिन भाई रविंद्र त्रिपाठी जी हमारे बगल में मौजूद हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया लेख मुझको लिख कर दिया। मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ भाई रविंद्र त्रिपाठी जी को। दो पंक्तियाँ ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में दगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो उसने कहा भरना पड़ता है, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। तो उसने कहा भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना। तो एक बार पुनः यहाँ पर आए सभी अभिभावकों का और अपने मुख्य अतिथि जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए, आप लोग आए और प्रोग्राम को बहुत ही सफल बनाया। इसी कड़ी में एक छोटी सी प्रक्रिया है। मैं चाहूँगा कि विद्यालय के अध्यक्ष श्री हीरालाल वर्मा जी हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। भैया दिनेश कृपया। इसी कड़ी में माननीय मुख्य अतिथि जी को एक और कष्ट दूंगा। कुछ लोग तो निश्चित ही इस प्रोग्राम की गरिमा को और गरिमा में और इजाफा होगा। तो मैं भाई बस अब ज़्यादा बात ही नहीं। मुख्य अतिथि महोदय को कहीं किसी और कार्यक्रम में जाना है, तो इसलिए मैं माननीय विधायक अनूप संडा जी को आवाज़ देता हूं कि वो आएँ। और एक साथ इसके पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा
कि विधायक जी ने इन बच्चों की प्रस्तुति पर खुश होकर के इन बच्चों के लिए 2000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया है। हम विद्यालय की तरफ से, विद्यालय प्रबंध समिति की तरफ से माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया। और अब मैं उनको आवाज़ देता हूं कि वो आकर के कुछ शब्दों में हमें उत्साहित करें। माननीय शिक्षा विधि इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है और ओम प्रकाश वर्मा जी इस क्षेत्र के सम्मानित बंधुओं, अभिभावकगण, माताओं बहनों, इस विद्यालय के शिक्षकगण, छात्रगण तथा अन्य सारे लोग, मैं सबसे पहले तो ओपी भाई आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए और इस विद्यालय के शिक्षकों को भी बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने अपने विद्यालय के बच्चों में जो अनुशासन और जो गुण भरे हैं वो आपके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देख करके उसका अंदाज लग जाता है। आज संयोग ऐसा है कि वो तीसरा विद्यालय ऐसा है, लेकिन आपके यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो स्तर है निश्चित तौर पे आपकी मेहनत और जो लगन आपके अंदर है जिसके बारे में अक्सर आप बात करते हैं, ऐसा लगता है खास करके जो अभिभावक हैं उनसे कहना चाहते हैं। आमतौर पे हम लोग दुनिया में अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि सिर्फ अपने काम से काम रखो, अपने काम के अलावा किसी से मतलब मत रखो। लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अभी एक कार्यक्रम इसमें काव्य पाठ का एक कार्यक्रम था जिसमें देशभक्तों के बारे में एक कविता एक बच्चे ने पढ़ी थी। तो मैं कहना चाहते हैं कि अगर यही बात आज़ादी की लड़ाई में अपने को कुर्बान कर देने वाले भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह चंद्रशेखर आज़ाद ने सोच ली होती या उनके माँ बाप ने उनको ये शिक्षा दे दी होती तो शायद आज भी हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। इस बात को भी हम लोगों को समझना होगा कि आज जिस दुनिया में हम लोग जिंदा हैं, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, जिन आदर्शों की, जिन मूल्यों की हम लोग बात करते हैं, अपने बच्चे में जो चरित्र और जो संस्कार पैदा करना चाहते हैं, वो चरित्र और संस्कार तभी पैदा हो पाएंगे जब एक बच्चा एक अच्छा हिंदू और अच्छा मुसलमान बनने से पहले अच्छा इंसान बनने के बारे में सोचेगा। हमको अपने बच्चे को अच्छा इंसान कैसे बनाना है इस बारे में सोचना होगा। और अच्छा इंसान वही होगा जैसा कि एक नाटक में दिखाया कि पढ़ा लिखा डॉक्टर भी छोड़ करके चला जाता है, धर्म का पुजारी भी चला जाता है, लेकिन एक समाज का सामान्य आदमी एक पीड़ित को, एक गरीब को, एक मजबूर आदमी को अस्पताल पहुंचाने का काम करता है। ये चरित्र अगर हम अपने बच्चों में भरें कि किसी मजबूर असहाय को अगर हमारी मदद की जरूरत हो तो अपना वक्त, कीमती भी वक्त अगर हो तो उसका कुछ समय निकाल करके किसी गरीब कमजोर की मदद करने में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो धर्म की भी सच्ची प्रार्थना होगी और एक बच्चे को अच्छा इंसान और अच्छा शिक्षा और अच्छे संस्कार हम लोग उसके अंदर डाल सकेंगे। मैं इन शब्दों के साथ कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूँ। ये जरूर है कि ओपी भाई ने जैसा बताया एक कक्ष का उद्घाटन करवाया और निश्चित तौर पर इनके प्रयासों से मैं सदैव प्रभावित रहता हूँ और निश्चित तौर पर इस वर्ष में जब निधि आ जाएगी तो पुनः मैं कोशिश करूँगा कि इस विद्यालय में एक और कक्ष का निर्माण हो और पुनः अगले साल ओपी भाई को बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि ओपी भाई ने कई शेर कहे थे और हमारे दोस्त हैं इसलिए मैं भी जाने के पहले एक शेर कह दूँ तो कहेंगे कि मैं नहीं शेर का भाई साहब ने नहीं कहा कि गमों की आंच को अश्कों पर उबाल कर देखो, गमों की आंच पर अश्कों को उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी ऐसी जियो कि लोग तुम्हें बार बार याद करें, कि लोग तुम्हें बार बार याद करें। मीठे बोल बोलिए, मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और इन्हीं से अजान होती है। ये समुंदर
ये समुंदर के वो मोती हैं, ये समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है, जिससे इंसानों की पहचान होती है। जीवन जीने की कला से अवगत कराएंगे। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। यदि जीवन में कुछ करना है तो हरदम मुझसे बचना है। मैं मीठी बोली हूँ, इंसान एक दुकान और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हर समय मीठा बोलो। मैं मेहनत हूँ। 2 अक्षर का होता है लव, 2.5 अक्षर का होता है भाग, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर ये चारों शब्द मेहनत से छोटे होते हैं। यदि आगे बढ़ना है तो मेहनत करना है। धन्यवाद। मैं स्वभाव हूँ, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ देने दें, लेकिन सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। इसलिए कहती हूँ, अपना स्वभाव बदलो, सारा जहां तुम्हारा होगा। धन्यवाद। मैं सरवण कुमार हूँ। जिंदगी में 2 लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा। माता, जिसे तुमने हर दुख में पुकारा है। जो भी अपने माता पिता को देगा दुख, वह जीवन में कभी नहीं पाएगा सुख। धन्यवाद। मैं चरित हूँ, रावण राम से, जात से, धन से, बल और पराक्रम से श्रेष्ठ थी। इतनी श्रेष्ठताओं के बावजूद वह रणभूमि में राम से परास्त हुआ, क्योंकि राम चरितवान थे, रावण चरितहीन। इसलिए कहती हूँ, चरितवान बनो। मैं जज्बा हूँ, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। या जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। मैं शिष्टाचार हूँ, जिंदगी में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। कहा जाता है कि प्रणाम परिणाम को बदल देता है। मैं सभी को अपने बस में करने का सामर्थ्य रखती हूँ। धन्यवाद। मैं लालच हूँ। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हें हर कोई पाने की कोशिश करता है, और मैं कितना बदनसीब हूँ, मुझसे हर कोई दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत बोली, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। Baby doll. So please welcome the Will know.
विच नचदी नु पेड़ होवे लावा चाहूं बाब सोनिए नच नच तक चंगी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोनिए मेरा विच नचदी नु पेड़ होवे लावा चाहूं बाब सोनिए नच नच तक चंगी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोनिए चमका चमका मेरी आ मैं चम चम करके चमका लावा झंडू बाम च नच दे मैं जन धमका चमका चमका मेरी आ मैं चम चम करके चमका लावा झंडू बाम च नच दे मैं जन धमका मेरे ही चर्चे मेरी आही गल्ला जब सारा करदा नी बार बार वे ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी ओ बेबी ढोल में सोने 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 दी हिरणी वर्गी चाल मेरी ते नागण वर्गी अगुत्ता मैनू एक के रंग दिया ने ऐसा बढ़ लिया रुत्ता हिरणी वर्गी चाल मेरी ते नागण वर्गी अगुत्ता मैनू एक के रंग दिया ने ऐसा बढ़ लिया रुत्ता खुल जावे सदके चुम लेने बच के मैं ना शर्मावा है बार बार वे ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी ओ बेबी ढोल में सोने 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 दी आप फिर से एक बार जोरदार ताली बजाएं। And how to say sorry and how to say thank you. Here at Mugan Mother School, we not only provide academic knowledge but also provide our students with moral and ethical values so as to make them a better human being. किसी भी संस्थान का विकास एक सतत प्रक्रिया है और वर्तमान वर्ष में विद्यालय में बहुत सारे निर्माण कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त कई इंटर क्लास और इंट्रा क्लास कंपटीशन के आयोजन भी किए गए हैं। So here is a reflection of our achievements for the last academic session 2014-15. I would like to call upon the stage Master Rajneesh Sahu and Miss Aanchal. कि वर्ष 2014-15 मुकुंद माधव का स्वर्णिम वर्ष साबित हुआ है। निश्चित ही रजनीश, मैं तुम्हारी बातों से अक्षरता सहमत हूँ। ऐसा क्यों लगता है तुमको? क्या इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहोगी? जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हमारे विद्यालय में 20x25 का एक कक्ष बनकर तैयार हो गया है। अरे हाँ, कक्ष ही नहीं, 250 फीट लंबी बाउंड्री वाल का निर्माण भी इसी वर्ष हुआ है। हाँ, 20x25 के 3 अन्य शिक्षण कक्ष, एक स्टाफ रूम और गर्ल्स व बॉयज के लिए अलग अलग 12x12 के 2 शौचालय का भी कार्य शुरू हुआ है। आंचल, इतना ही नहीं, यह विशाल स्टेज जिस पर आज हम खड़े हैं, यह इसी वर्ष की देन है। विशाल का गेट द्वारा अब हमारा विद्यालय हर तरफ से सुरक्षित है। आगे का विवरण प्रस्तुत करने आ रहे हैं अजीत वर्मा और निधि वर्मा। अजीत और निधि, प्लीज कम ऑन द स्टेज। 2014 को विद्यालय परिसर में सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अजय हाउस प्रथम, रणंजय हाउस द्वितीय व अजय हाउस तृतीय स्थान पर रहा। 4 नवंबर 2014 को विद्यालय परिसर में सभी विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 4 दिसंबर 2014 आयोजन किया गया, जिसमें जय हाउस प्रथम, रणंजय हाउस द्वितीय व अजय हाउस तृतीय स्थान पर रहा। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त फैंसी ड्रेस कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। धन्यवाद। मैं यहाँ पर दूर दूर से आए अपने सभी अभिभावकों का हार्दिक वंदन करता हूँ।
अभिनंदन करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों की सहभागिता को देख करके निश्चित ही मुझे बल मिला है कि नहीं, हमारे अभिभावक, हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विश्वास को जो आपने हमें जताया है, मैं इसको टूटने नहीं दूंगा। जैसा कि विधायक जी ने कहा कि कुछ लोग धन कमाने के लिए स्कूल नहीं दुकान खोलते हैं, तो मैं अपने मुंह से कहना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैं अपने अभिभावकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कम से कम पैसे में, जो कि हमारा अभिभावक, हर अभिभावक वहन कर सके, इस विद्यालय को आजीवन निरंतर जब तक मैं जीवित रहूंगा चलाता रहूंगा। और इस विद्यालय को एक कॉन्वेंट जैसा विद्यालय, क्योंकि मेरी एक कल्पना रही है कि जिसने विद्यालय में पढ़ाता हूँ सुल्तानपुर में, वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्यालय है, सबसे महंगा और सबसे सुंदर विद्यालय है। तो मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कल्पना है कि मैं वैसा ही विद्यालय अपने गाँव को, अपने क्षेत्र को दूँ, जिससे कि हमारे गांव के भी बच्चे अंग्रेजी में बोल सकें, आगे बढ़ सकें, डिप्टी कलेक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें, डॉक्टर बन सकें, और वो अपने माता पिता का और साथ में ये तो कहेंगे कि नहीं, मैंने मुकुंद माधव में पढ़ा था। उन बच्चों का जो कॉन्वेंट में पढ़े हैं, और कम से कम 100 बच्चे यहाँ एकत्रित हुए थे, जिसमें मैक्सिमम डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, या तो एक सफल बिजनेसमैन थे। तो ऐसे ही एक समय आएगा कि जब हमारी ये पौध बढ़कर तैयार होगी, तो निश्चित ही मेरा नाम आगे जाएगा और मुझे अच्छा लगेगा। तो इस बार मैं सभी अभिभावकों का अभिवादन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि विद्यालय की तरफ से जो भी कहा गया, ड्रेस के लिए कहा गया, उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सभी बच्चों को उन्होंने अपने अपने बच्चों को कलरफुल ड्रेसेस दिलाए, जिसमें निश्चित ही पैसा इन्वेस्ट हुआ। लेकिन ये आप सभी जानते हैं कि बिना पैसे के कुछ न कुछ तो पैसा लगाना ही पड़ेगा कुछ प्राप्त करने के लिए। तो इस कार्यक्रम का मेन जो मुख्य उद्देश्य है, मैं उसको आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा बहुत ही कम शब्दों में। ये कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। उनकी झिझक दूर होती है, उनकी डर दूर होती है। स्टेज पर खड़े होकर के बोलना बहुत टफ काम है, बहुत मेहनत का काम है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी किसी को आवाज़ दूं कि आइए और कुछ संबोधित कीजिए या कुछ बताइए बच्चों को, तो हमें भय लगेगा। तो उसी हिसाब से बच्चों को भी डर लगता है। तो इन कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों में निर्भीकता पैदा करते हैं, उनको दृढ़ बनाते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं और उनमें समय के साथ लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं। तो एक बार पुनः, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और उसमें भी मेरी तरफ से दोष नहीं है, जैसे मैंने 5 बजे का समय दिया था, तो 5 बजे केवल मुश्किल से 5 अभिभावक ही उपस्थित हुए प्रोग्राम में। तो इसलिए भी मैं प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं कर पाया, शुरू नहीं कर पाया, जिससे विलम्ब हुआ। और एक विलम्ब का कारण था विधायक जी का देर से आना। लेकिन अगर अभिभावकों की उपस्थिति समय से हो गई होती तो निश्चित ही मैं प्रोग्राम को और पहले स्टार्ट कराता। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः, जिन्होंने आपने जो परफॉर्मेंस बच्चों की देखी डांस की, उन्होंने पिछले 1 महीने से काफ़ी संघर्ष करके बच्चों को ट्रेन किया, बहुत मेहनत किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैडम सुनीता गुप्ता जो शहर से आती हैं और बच्चों को सिखाती हैं। हमारे सहयोगी राजेश चौधरी जी जो कि हमारे स्टेला मैरिज कॉन्वेंट स्कूल में हमारे साथ संगीत शिक्षक हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। किसी भी प्रोग्राम की सफलता के लिए साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी प्रोग्राम संभव नहीं है। तो
साउंड सिस्टम के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे म्यूजिशियन भाई आए हैं शहर से, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारे गांव के तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम बच्चे हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पिछले कई दिनों से मेरी मदद की, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और गांव के हमारे एक हैं नीरज जी, जो कि आज कई दिन से हमारे साथ लगे हैं, संतराम जी कई दिन से साथ लगे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक एक बच्चे का चयन करना, उनको डिसिप्लिन में रखना और उनको एक एक बातों को सिखाना निश्चित ही बहुत मेहनत का काम है। ये मेरा ही काम नहीं है, मैं अपने सभी शिक्षकों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और सफल करने में अथक परिश्रम किया है, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बार पुनः सभी अभिभावकों को, सभी हमारे जो सहकर्मी हैं उनको, और जो हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं बातों के साथ जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ या छूट जा रहा है, उनको भी जो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जुड़े रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस प्रोग्राम की अंतिम कड़ी में पंकज देना चाह रहा हूँ कि जो भी अभिभावक आए हैं और जिनके बच्चे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, वो कृपया जाते समय अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं। थोड़ा सा रुकें, बच्चों को साथ लेके तब घर जाएं। भेजना चाहते हैं तो वाहन सब बाहर खड़े हैं, थोड़ा सा धैर्य दिखाइएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा मिस हो जाएगा, कहीं भूल जाएगा तो आपको भी असुविधा होगी और हमें भी। तो हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि थोड़ा धैर्य का परिचय देते हुए अपने बच्चों को ले करके, और अगर बच्चे ऑटो से जाना चाहते हैं या वैन से जाना चाहते हैं तो हमारी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, वो बच्चों को घर घर तक पहुंचाएंगे। और मात्र अब इसके बाद एक प्रोग्राम है,
कृपया उनको कहें कि वो सावधानी से खड़े हों, हिले डुले नहीं। कृपया खड़े हो जाइए, जो भी आप जहाँ पे भी बैठे हैं वहीं पे खड़े हो जाइए, शांति के साथ। कोई भी इधर उधर कोई भी बोलेगा नहीं, बच्चों को भी, टीचर्स लोग बच्चों को सावधान करें। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, आरे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। धन्यवाद। कल